Good evening, Shridatri. Good Good evening, evening. ma'am. Okay, how are you? I'm fine, thank you, ma'am. How about you? I'm good. So, shall we start? Yes, ma'am. Okay. So, you just tell me what you understood from that last class. Ma'am, about the angles formed between two lines and about rays and straight lines. Okay. So, can you define straight line? Ma'am, a line joining two points is called a straight line. Line joining two points. Okay. Yes, ma'am. Uh, do you know that is it fixed or we don't know that exactly where we have to stop? Uh, no, ma'am, I don't know. It is going endlessly na, from both ends. It is not going to stop. Yes, If we are going to consider line segment, that time only it is fixed. Okay. yes, ma'am. Okay. So I'll share straight line chapter. You just confirm me that same syllabus is of yours. Yesterday you told me that straight line Yes, is your ma'am. first chapter. So we are going to start with that straight line only. Just a minute. Huh? Good evening, Satyajit. सत्यजीत आवाज आ रही है? तो आवाज नहीं, आ रही है सत्यजीत? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके। श्रीदात्री आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? Yes, ma'am. ओके सत्यजीत थोड़ा आपका नेटवर्क चेक कर लो क्योंकि आवाज आ रही है। ओके एक बार चेक करो। ओके सो आप दोनों को दिख रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके सो सेम टॉपिक यू आर आल्सो हैविंग ना? Mm, yes, ma'am. ओके सो फाइन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। So basically, yesterday we saw the basics of geometry. Geometry में basic क्या होता है वो हमने कल सीखा। तो हमने start किया था point से। तो point is used for representing any object's location. Then we moved for the next point that was line segment. और उसके बाद हमने line देखा। तो line means what? अगर कौन सा भी curve है और उसके दो point अगर आप consider कर रहे हो, ठीक है, तो वो दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो वो बनती है लाइन। और लाइन दोनों पॉइंट से एक्सटेंड होती है। इट इज नॉट गोइंग टू एंड, इट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग फ्रॉम बोथ द एंड्स। दोनों साइड से लाइन क्या होती है? ग्रो करती है, मतलब वो कंटिन्यूअसली जाती है, वो कभी भी रुकती नहीं है। जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, उसका डिस्टेंस हमें पता होता है, इनिशियल पॉइंट हमें पता होता है और एंड पॉइंट भी पता होता है। सो इस चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल, सर्कल, ट्रायंगल ये क्या होता है। तो बाइसेक्टर, दैट वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट बाइसेक्टर, मतलब बाय मींस टू, दो इक्वल पार्ट में अगर हम कोई भी लाइन डिवाइड करें, जैसे कि आई शेयर स्क्रीन। नाउ सी हियर, कंसिडर दिस एज लाइन ए बी। तो मैंने यहाँ ए बी नाम दिया, ये है ए और यहाँ दिया बी। ओके तो अगर इस लाइन को ये जो लाइन है वो कंसिडर दिस लाइन एज एल, हम लाइन को दो
कैपिटल लेटर से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर अगर एक लेटर यूज करना है तो वो स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर लिया एल, इसको बोलेंगे लाइन एल, और यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे लाइन ए बी। अगर लाइन एल लाइन ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्टर। और ये यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल बना है तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Understood? Bisector means what? Line L, if it divides line AB into two equal parts and making an angle 90 degree, then we can say it is perpendicular bisector. Understood? Yes, ma'am. Bisector या फिर perpendicular bisector means what? So same we can say about angle also. If we will draw any angle, suppose I'll draw an acute angle. Okay, here I'll show you one acute angle, and just a minute. This is angle, and if any one ray is dividing this total angle into two equal parts, means what? Suppose this total angle is 40 degree, and if this ray, I'll show you, this ray divides this total angle into two equal parts, so this is called as angle bisector. That ray is called as angle bisector. अभी यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि ये भी 20 डिग्री है एंगल और ये भी 20 डिग्री एंगल है और टोटल है 40 डिग्री, सो ये जो रे है, अगर मैंने यहाँ नाम दिया ये O, यहाँ नाम दिया A, और यहाँ दिया B, और यहाँ दिया C, तो ये OA जो रे है, इट डिवाइड्स एंगल BOC into two equal parts. That's why OA क्या बना हमारा? एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी। यहाँ पे एंगल क्या हुआ है? बाइसेक्ट हुआ है, मतलब दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हुआ है। समझ में आया? बाइसेक्टर एंगल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, दोनों में डिफरेंस क्या है? समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आपके सिलेबस में है वो है लोकस। लोकस मतलब क्या होता है कि इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, एक पॉइंट्स का सेट होता है कि जो कुछ सर्टेन कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी अगर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसका नाम मैंने P दिया। If that P point is equidistant from OC ray and OB ray, ये B पॉइंट है, OC एंड OB ये दो रे से अगर P पॉइंट क्या है? इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस मतलब क्या? कि सेम ही डिस्टेंस पे, जितना यहाँ पे डिस्टेंस है उतना ही इस रे पे डिस्टेंस है, मतलब दोनों रे से वो जो पॉइंट P है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो P क्या हुआ हमारा? इट इज कॉल्ड एज लोकस। मतलब ये जो पॉइंट P है वो कुछ ऐसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इस सेट को हम बोलेंगे लोकस। इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स which satisfies certain geometrical condition. समझ में आया? Locus means what? Yes, ma'am. Okay, so I'll show you your textbook screen so that you will understand that which point I just discussed. Okay, so here I just explained this locus. What is given here? A set of points in a plane which satisfy certain geometrical conditions is called as a locus. अभी यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने? L is equal to P. So P is what? P एक पॉइंट है जो प्लेन में है और वो कुछ ऐसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन
सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो पूरा सेट जो पॉइंट का होगा उसको हम लोकस बोलेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हम अप्लाई करते। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन कौन सी उन्होंने दी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो मैंने बोला था फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जो y एक्सिस मैंने दिखाई थी, ए बी एक लाइन दिखाई थी और एल एक लाइन दिखाई थी जो वर्टिकल थी। तो अगर हमने वो y एक्सिस जैसे वर्टिकल लाइन पे एक पॉइंट लिया कि वो पॉइंट वो ए एंड बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो P को हम क्या बोलेंगे कि लोकस। Why? Because that P is a point which satisfy the condition as PA is equal to PB। मतलब जो डिस्टेंस P से A तक है वही सेम डिस्टेंस P से B तक है। I'll show with that figure again। यहां देखो जो मैंने अभी बोला, अगर मैंने यहां एक पॉइंट लिया P, यहां मैंने एक पॉइंट लिया P, तो P कौन सी ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि P जो है वो इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट मतलब P और A का जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस P और B का है। सो ये पॉइंट ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसीलिए ये पॉइंट P को हम लोकस कहेंगे। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. So same we are going to apply that locus for this angle bisector also, because P is also a point which satisfy the condition that PB is the same as PC. Okay? Yes, ma'am. Okay. सत्यजीत यस समझ मैम। में आ रहा है सत्यजीत? Okay. So now we are going to move for the next point. Just a minute. Okay. तो यहाँ पे भी उन्होंने टेक्स्ट बुक में भी एक फिगर दिया है। देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको वो फिगर है। क्या है ये कि एक रे है ओ ए और ओ बी, तो इन दोनों की वजह से यहाँ एंगल बना है। पर ओपी क्या है? एक एंगल बाइसेक्टर है। और ये जो पी पॉइंट है पूरा ये लाइन पे कौन सा भी अगर आपने पॉइंट लिया और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जितना डिस्टेंस ये पॉइंट का यहां तक है वही सेम डिस्टेंस ये पॉइंट का यहां तक है। सो यहाँ पे भी हम क्या फॉलो करते हैं कि यहाँ देखो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी इज द सेट। तो कौन सा सेट है कि P is a point such that P is equidistant from OA ray and OB ray. Okay? So we are going to move to next question. सी यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि एग्जाम्पल एक सॉल्व करके दिया है। एग्जाम्पल क्या है देखो, वी नो दैट y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0। इसका मीनिंग क्या है कि y एक्सिस ये वर्टिकल जो लाइन होती है उसको हम y एक्सिस कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम x एक्सिस कहते हैं। तो अगर y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर हमने कंसिडर किया तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब वो 0 होता है क्योंकि वो y पे लोकेट है। अगर हमने x एक्सिस का कोई भी पॉइंट लिया तो उसका y कोऑर्डिनेट एब्सेंट होता है। ये समझ में आता है आपको? y कोऑर्डिनेट एब्सेंट होता है मतलब अगर हमने Yes, कोऑर्डिनेट, ma'am. यस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या कि वो पॉइंट की लोकेशन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखना होता है। तो अगर वो पॉइंट x पे है, x एक्सिस पे है, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 आएगा और वो अगर y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 आएगा। अगेन आई विल शो दिस, जस्ट अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल।
Now you can see the screen where your textbook page is there. See, यहाँ पे देखो, ये अगर यहाँ कोई भी पॉइंट हमने लिया तो उसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस का, अगर हमने एक्स कंसिडर किया तो एक्स कॉमा 0, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं जो पॉइंट, उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और अगर हमने वाई पे कोई भी पॉइंट लिया, यहां अगर मैंने पॉइंट लिया है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एक्सिस 0। हमेशा एक्स एक्सिस पहले लिखते और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं उसके कोऑर्डिनेट 0, y होते हैं, और एक्स एक्सिस पे अगर है पॉइंट तो वो होता है x, 0। अभी यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने कि आपको क्या करना है कि ये चेक करना है कि O to P डिस्टेंस, तो इसका इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम? यू नो डिस्टेंस फॉर्मूला? Yes, ma'am. क्या होता है वो डिस्टेंस फॉर्मूला? Ma'am, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under root में. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो हमें डिस्टेंस चाहिए दो पॉइंट में, सपोज अभी मुझे चाहिए O और P का डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में कि पहले x जो कोऑर्डिनेट होता है उन दोनों की सब्ट्रैक्शन करके उसका स्क्वायर करते। मतलब यहाँ पे अगर मुझे ये दोनों का डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगी कि स्क्वायर रूट में लिखूंगी कि x ये पहला कोऑर्डिनेट है और ये ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। क्या होते हैं? 0, 0। तो मैं यहाँ पे x-0 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y-0 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या आएगा फिर सॉल्व करने के बाद? x-0 मीन्स इट इज x ओनली, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा। ओके, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. पर हमें यहाँ पे इक्वेशन पूछा है उन्होंने, तो हम क्या करेंगे? ये डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है, यस और नो? ये डिस्टेंस इट इज गिवन, सो ये फॉर्मूला हमने डिस्टेंस का यूज किया, इज इक्वल टू 4। इट इज गिवन distance between 2 points, they have already mentioned that OP is 4, and we use that distance formula here. What we use? X minus 0 whole bracket square plus y minus 0 whole bracket square. So x minus 0 means x only and uska square. So x square plus y square, ये अंडर रूट में है, इज इक्वल टू 4। तो अभी इक्वेशन अगर हमें चाहिए तो हमें दोनों साइड क्या करना होगा? कैन दोनों यू साइड टेल? स्क्वायरिंग. यस यस, दोनों साइड का हमें स्क्वायर करना है, सो दैट वी विल गेट दैट इक्वेशन। तो हमें अभी इक्वेशन क्या मिला? ये पूरे स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल होता है और जो अंदर टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर वो टर्म एज इट इज रहती है, और हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ दिस 4 स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4? 16. Yes, absolutely correct. So this is your equation. अगर ये भी आपको और अच्छे तरीके से सॉल्व करना है तो ये 16 लेफ्ट हैंड साइड पे ले सकते हो आप और इक्वेशन बना सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस क्यों? क्योंकि हमने ट्रांसपोज किया। डू यू नो द ट्रांसपोज मेथड? Yes, ma'am. When we are changing any number or any variable to another side, we have to change the sign of that number, original sign we are going to change. So 16 के अभी साइन है प्लस, वो राइट हैंड साइड पे है पर हमें वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है, तो प्लस का साइन चेंज होगा माइनस और इक्वेशन हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, सत्यजीत समझ में आ रहा है? यस मैम। सत्यजीत, ओके। सो इक्वेशन जो बनाना था वो क्या मिला हमें? कैन यू प्लीज टेल? इक्वेशन कौन सा मिला फाइनल हमें?
मैम x² + y² - 16 = 0। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन हमें अगर पूछे जाए तो हमें वो क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई शेयर अगेन योर टेक्स्ट बुक स्क्रीन। सी हियर, यहाँ पे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया देखो, वही दिया है। क्या दिया है कि L is the locus of points in the plane which are at 4 unit distance from the origin. So distance already it is given, distance दिया है 4 unit, but हमें क्या करना है, अभी इक्वेशन बनाना है। सो इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पे जो मैंने लिखा था वही यहाँ पे है कि x - 0 पूरा स्क्वायर, फिर y - 0 पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे मिला x² + y² = 16। अगर आप यहां तक लिखोगे तो भी फुल मार्क्स मिलते हैं आपको। अगर ये यहां शिफ्ट करके =0 किया तो भी मार्क्स मिलते। ठीक है, तो ये हमें मिला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस L। तो ऐसे हमें इक्वेशन बनाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया है, देखो सेम हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from A. One point is given -3, 0 and another point is given 3, 0। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इक्विडिस्टेंट एक जो पॉइंट है उसको कंसिडर करके हमें इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या यूज करेंगे अभी, जो मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। मैम डिस्टेंस फॉर्मूला। यस, आपको स्क्रीन दिख रही है दोनों को? यस मैम। यस मैम। ओके, तो कैसे करोगे सॉल्व, एक फर्स्ट स्टेप बताओगे? मैम ए और जो लोकस का पॉइंट है और बी और लोकस पॉइंट, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होगा तो उनको इक्वल ले लेंगे। यस, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। जस्ट अ मिनट। ये चैप्टर हुआ है आपके कॉलेज में? यस और नो? मैम स्कूल में पढ़ाया था। अच्छा ठीक है, कॉलेज में नहीं हुआ? नहीं मैम। ओके, ये तो फर्स्ट चैप्टर है ना? हाँ हाँ जी मैम, वैसे फर्स्ट तो नहीं है ना, फर्स्ट सेट्स था पर सर ने इससे शुरू कराया था। अच्छा, ऐसा है। Yesterday you said that's why I start with this chapter ना? हम्म। Okay, fine. So let's solve this. देखो अभी अगर यहाँ पे हमने दो एक्सिस हम पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक है, ये एरो आपको दिख रहे हैं ना अच्छे से? यस मैम। ओके, तो जो पॉइंट ए दिया है उसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 0। तो ये अगर 0 है y कोऑर्डिनेट, तो ये पॉइंट कहाँ लोकेट होगा, इसकी लोकेशन क्या होगी, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो एब्सेंट है। मैम लेफ्ट साइड एक्स कोऑर्डिनेट पे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये ओरिजिन होता है और यहाँ से पॉजिटिव नंबर लिखते हैं राइट हैंड साइड पे, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे निगेटिव नंबर्स लिखते हैं, मतलब -1, -2, -3। तो नियर अबाउट ये पॉइंट आएगा यहाँ, ए पॉइंट जो है हमारा वो यहाँ आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है उन्होंने 3, 0। तो ये कहाँ पे आएगा? मैम एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड। यस, यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते, तो ये हमारा पॉइंट आएगा बी। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस
of points which are equidistant from these 2 points. So अगर ये 2 पॉइंट है और हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, कंसिडर करो यहां मैंने P लिखा और इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिखे x, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 आएगा ना, 0, y, यस और नो? यस मैम, यस मैम, ओके, तो ये मुझे कंसिडर करना है कि पी ए जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पी बी आएगा। तो हमें ये दोनों के लिए पहले क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और वो इक्वेशन जो मिलेगा उसको इक्वेट करना है ये इक्वेशन से, पी और बी का डिस्टेंस हमें ढूंढना है। समझ में आया कैसे करना है? यस मैम, ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कि ये है -3, 0। तो पहले मैं लिखूंगी 0 माइनस, यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे आएगा हमारा, स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे 0, देन माइनस ऑफ -3, तो इट विल बिकम प्लस, माइनस माइनस अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो वो होता है प्लस। तो यहां हमें मिला 0 + 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा y माइनस क्या आएगा, 0, तो ये बनेगा क्या, y², यस और नो? यस मैम, ओके, इज इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है पीबी डिस्टेंस, तो यहां से फिर से हम 0 - 3 करेंगे, तो ये हमें मिला -3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये y, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0, तो y - 0 ये बनेगा y², यस और नो? यस मैम, ओके, तो फिर क्या आएगा उसके बाद, क्या होगा, 3y², फिर मैम अंडर रूट और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, पूरा ये करेक्ट है, आपको लग रहा है कहाँ मिस्टेक हुई है या फिर मैम ठीक ही लग रहा है। ओके, विश्वजीत आपको क्या लग रहा है? विश्वजीत, सॉरी सत्यजीत, मैम ओके सी हियर, हाँ हाँ, बोलो बोलो सत्यजीत, सत्यजीत, जो भी कुछ समझ यस में आ रहा है मैम। आप बोल सकते हो, हाँ बोलो, समझ में आ रहा है? सत्यजीत, ओके, सो जो हमने सॉल्व किया वो करेक्ट है, बट देखो अभी यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर किया जाए तो 9 आएगा, प्लस y का स्क्वायर एज इट इज y² होगा, और अगर हमने ये पूरा स्क्वायर रूट निकाल लिया तो हमें दोनों साइड सेम ही मिलेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, 3 - 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, और ये y², तो LHS = RHS आएगा, तो हमें इक्वेशन नहीं मिल रहा है, यस और नो? यस मैम, यस, तो इसीलिए जो मैंने यहाँ पे 0 लिखा था, ये क्योंकि x कोऑर्डिनेट एब्सेंट है, पर यहाँ पे देखो उन्होंने इक्वेशन बनाने के लिए सॉल्यूशन में क्या लिखा है कि लेट p x y बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस, तो इसको उन्होंने x कंसिडर किया है इंस्टेड ऑफ दैट 0, बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली, sure we don't know that whether it is lie on that y-axis or somewhere else, maybe it may be in the first quadrant, it may be in the second quadrant, ऐसे हमने पहले कंसिडर करना है और इसको हमें x लेना है। यहाँ मैंने कैसे कंसिडर किया कि ये y एक्सिस पे, इसीलिए मैंने ये पॉइंट को 0 कंसिडर किया, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी जगह x लिखना है, और यहाँ पे भी आएगा x - 3, ये जो है ये x + 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर और प्लस y² यहाँ पे आएगा
तो दोनों में अभी देखो डिफरेंस क्या आया कि यहाँ पे x+3 का स्क्वायर है और नीचे मतलब राइट हैंड साइड पे आएगा x-3 का स्क्वायर। तो मैं अभी आपको आपके टेक्स्ट बुक की स्क्रीन दिखाती हूँ, सो आपको वो क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। सी हियर, यहाँ पे फर्स्ट आई शो दिस लास्ट सेंटेंस। यहाँ पे लास्ट सेंटेंस क्या था कि लेट अस कंसिडर, यहाँ देखो उन्होंने क्या किया है, लेट अस कंसिडर पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोटस, और उसको आपने क्या किया, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि पी ए जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस है पी बी, तो हमें ये इक्वेशन का यूज करना है और उन दोनों का स्क्वायर करना है, बिकॉज वो होता है स्क्वायर रूट में, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में, तो अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो हमें इक्वेशन मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या किया है कि x यूज किया जहां पे हमने 0 यूज किया था, तो x+3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y-0 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू आया x-3, जो कि हमें भी वैसे ही मिला था, और यहाँ पे y स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है, अगर a+b होल ब्रैकेट स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला होता है पहले टर्म का स्क्वायर, तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस ये दोनों टर्म की मल्टीप्लीकेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 into x उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, इट विल बिकम 6x, एंड ये जो लास्ट टर्म है सेकेंड टर्म उसका स्क्वायर, तो हमें पहले ब्रैकेट का आंसर मिला x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और ये जो y-0 होता है वो y ही होता है, तो y का स्क्वायर, तो यहाँ हमें मिला y का स्क्वायर। फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे, बट यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ है माइनस साइन और यहाँ पे था प्लस साइन, सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर। तो दोनों साइड हमें देखना है, LHS में भी x स्क्वायर है, RHS ऑल्सो x स्क्वायर, तो इट विल गेट कैंसल। दोनों साइड अगर सेम टर्म है तो वो कैंसिल हो जाती है। कैसे कैंसिल होती है, अगर हमने x स्क्वायर ये राइट हैंड साइड पे है वो अगर लेफ्ट पे लिया सो इट विल बिकम माइनस, सो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो इट विल बिकम कैंसिल ओनली, सो दैट इफ LHS RHS को दोनों टर्म सेम है तो हम कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हुआ, और ये y स्क्वायर भी दोनों जगह सेम है वो कैंसिल होगा, और 9 भी यहाँ पे है, 9 यहाँ पे भी है, तो दोनों 9 भी कैंसिल हो गए। अभी सिर्फ बचा कौन सी टर्म, 6x। यस, तो यहाँ पे 6x है और राइट हैंड साइड पे -6x, so when we are solving that, when we transpose that -6 to LHS, it will become plus 6x, so now next step पे हमें आंसर मिलेगा 6x plus 6x is equal to 0, so it will become 12x is equal to 0। अभी हमें x टर्म में इक्वेशन चाहिए, तो हमें 12 फिर से लेफ्ट से राइट को शिफ्ट करना है, और 0 डिवाइड बाय 12 वी आर गेटिंग आंसर एज 0, तो हमें इक्वेशन क्या मिला, x is equal to 0 is the locus of, so that is y axis, x is equal to 0 means what, y axis पे ऑलरेडी हमने जो आंसर ढूंढा था कि अगर वो y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे हमें वही आंसर मिला कि x is equal to 0 means that locus means that point is the y axis। Understood? Yes, ma'am. Okay, दोनों को समझ में आया? यस मैम। सत्यजीत है, ओके, एंड श्रीदात्री आपको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे हम अभी सेम वैसे जो इक्वेशन हमें बनाना है, एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। Whatever I just taught you, it depends on that only. What is given? If A coordinates are given, that is 1,3, and B coordinates are given 2,1. ये दो पॉइंट्स दिए हैं, and we have to find out
equation of the locus of point P such that condition is given. Condition कौन सी दी है? PA is equal to PB. Now जो हमने सॉल्व किया PA is equal to PB लेके वैसे ही करना है, पर यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है. वहां पे दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे दिए थे, यहाँ पे दोनों पॉइंट क्वाड्रेंट में दिए हैं. कैन यू सॉल्व दिस? यस मैम. एक बार ट्राई करोगे? सत्यजीत, जो मैंने अभी सिखाया सेम उसी पे डिपेंड ये क्वेश्चन है. एक बार ट्राई करो. आई गिव यू हिंट. अभी क्या करना है? P का हमें इक्वेशन बनाए, लोकस P का हमें इक्वेशन बनाना है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. कंडीशन दी है उन्होंने PA इज इक्वल टू PB. सो P के कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करो x एंड y, और पहले डिस्टेंस ढूंढो PA का, फिर डिस्टेंस ढूंढो PB का, और दोनों इक्वेशन इक्वेट करो सो दैट यू विल गेट आंसर. ट्राई करोगे? यस और नो दोनों? यस मैम. Okay, try karo and you can tell me the equation. I will also solve, but you try so that I'll understand that whether you are getting or not. Satyajit, आप भी try करो. Yes, ma'am. Okay. P के पॉइंट कंसिडर करो x, y. पहली कंडीशन लो PA. PA is equal to PB. और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो. I'll give you time, you try, and then I'll explain. A के पॉइंट से 1,3 एंड B के 2,1. मतलब 2 x कोऑर्डिनेट है एंड 3 सॉरी 1 जो है वो y कोऑर्डिनेट है. 1 and 3. ओके, आई एम ऑल्सो सॉल्विंग. यू ट्राई अ स्क्वायर. When you will get answer, let me know. मैम आंसर 2x माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ रहा है. Okay, I'm also solving. We will check this. Okay, just a minute. I'll share the screen where I'm going to solve this. Just a minute. Okay, so now you will see this screen where I'm solving the same. Same process you used na, Shridatri? यस मैम. ओके, सो यहाँ पे दोनों भी ध्यान दो. यहाँ पे मैंने P के कोऑर्डिनेट्स लिए x, y, और यहाँ पे इक्वेशन दिया है PA इज इक्वल टू PB. सो P और A का डिस्टेंस ढूंढना है. A के पॉइंट्स थे 1 and 3. सो मैंने x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर किया, और यहाँ पे B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिए मैंने, वो थे 2 और 1. सो x माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर. तो यहाँ पे मिला x का स्क्वायर माइनस ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो माइनस 2x प्लस 1, यहाँ पे मिला y स्क्वायर माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय 2. सो हियर इट इज 6y एंड 3 का स्क्वायर 9. सेम यहाँ पे x स्क्वायर
-4x + 4 प्लस y² - 2y + 1। तो यहाँ देखो हमने x² और ये x² हमने कट किया, फिर y² कैंसिल हुआ ये y² से, और यहाँ पे क्या है 2x, ये -2x है और ये -4x है। अगर ये 4x हमने यहाँ शिफ्ट किया तो वो बनेगा प्लस, और +4x - 2x हमें मिलेगा 2x, और यहाँ -6y है और यहाँ -2y। ये अगर यहाँ शिफ्ट किया जाए तो वो मिलेगा +2y, और हमें यहाँ मिलेगा -4y, और ये 9 + 1 10 हुआ, और यहाँ पे 4 + 1 5, और ये 5 हमने यहाँ शिफ्ट किए तो वो बनेगा 10 - 5, तो आंसर हमें मिलेगा यहाँ 5। श्रीदात्री, यू गॉट द सेम ना? Yes, ma'am. सेम आंसर यू गॉट? Yes, ma'am. ओके, सत्यजीत आपने सॉल्व किया? मैम सत्यजीत सॉल्व किया आपने? मुझे आंसर आवाज आपकी, अच्छा तुला जमलं मराठीत नाही मला. बोलायचं असेल तर तू बोलू शकतो, मराठी मी सांगू शकते मराठीमध्ये, ठीक आहे? तुला कळालं नाही की सॉल्व करता आलं नाही? थोडं चुकून गेलं मॅडम मी सॉल्व करताना. ओके, स्क्वेअर मध्ये चुकला का? येस मॅम. ओके, आता समजलं? येस मॅम. ओके, जर कळालं नसेल तर लिहून घे. ओके, सो श्रीदात्री व्हेरी गुड, your answer is correct, and Satyajit well tried. Okay, so shall we move to next question so that ये क्वेश्चन पूरा करेक्ट हमें समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन करेंगे सेम ऐसा? Yes, ma'am. Okay, so now next question. Just a minute, I'll share it. Okay, so now in next question, same type of question, only the coordinates are changed. So यहाँ पे दिया है देखो, A coordinate -5,2, B coordinate 4,1, एंड आपको सेम वैसे ही इक्वेशन बनाना है जैसे पहले एग्जाम्पल में किया, और उन्होंने सेम कंडीशन दी है कि P पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है A एंड B से। सो इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन क्या आएगा अभी आपका? इक्वेशन आएगा PA = PB, सेम ना? P पॉइंट से A और B ये डिस्टेंस दोनों सेम है, तो आपको इक्वेशन बनाना है PA = PB। तो अभी P और A का डिस्टेंस ढूंढना है और P और B का, एंड whatever you will get after solving, that is your answer. So are you ready to solve? Yes, ma'am. Okay, now both of you try. I'll also solve on board the screen so that you will check your answer. P के कोऑर्डिनेट्स क्या कंसिडर करोगे? X, Y. Yes. फर्स्ट स्टेप करेक्ट आई आप दोनों की? Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो ये ब्रैकेट बनेगा x + 5 का स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ पे
5 2 जा प्लस 10x लिखा है मैंने। हाँ, वो माइनस माइनस प्लस होता है, अगर माइनस लिया आपने एज इट इज तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ये देखो दोनों की स्टेप ये करेक्ट आई स्क्वायर की। यस मैम। ओके, ये देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, वाई स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 और ये y और 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर भी कैंसिल। तो अभी बचा क्या, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे माइनस 8x है, तो वो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो क्या होगा, क्या होगा ये अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो मैम 10x प्लस 8x प्लस 25 प्लस 4 माइनस 16 माइनस 1। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमें क्या करना है अभी, 10x प्लस 8x, तो हमें मिला 18x, और हमें y का देखना है, यहाँ पे देखो माइनस 4y है, ये अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4y प्लस 2y ये बनेगा माइनस 2y, क्योंकि जब भी बड़े नंबर का साइन निगेटिव होता है तो आंसर को भी निगेटिव साइन मिलता है। तो माइनस 4y प्लस 2y आंसर मिला हमें माइनस 2y, और ये 25 प्लस 4 ये मिला 29। 29 में से हमें 17 सब्ट्रैक्ट करने, तो क्या मिलेगा आंसर, 29 माइनस 17, तो 12 आंसर मिला यस मैम। इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड, दोनों को समझ में आया क्या किया हमने। यस मैम। ओके सत्यजीत, सत्यजीत करेक्ट आया आपका आंसर। यस मैम। ओके, तो आज का होमवर्क ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यस मैम। मैम जो 18x माइनस 2y प्लस 12y है उससे हम लोग दो कॉमन लेके दो कॉमन ले सकते हैं। यस एब्सोल्युटली यू कैन टेक। यहाँ अगर 2 कॉमन लिया आपने तो ये आंसर बनेगा 9x, फिर ये बनेगा माइनस y, फिर ये बनेगा प्लस 6 और इज इक्वल टू 0, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है वो हम यहाँ शिफ्ट करेंगे सो दैट इट विल बिकम अगेन 0। तो फाइनल में हमें मिलेगा 9x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी आप कर सकते हो, वेरी गुड श्रीदात्री, ये भी कर सकते हो। ओके यस मैम। ओके, तो कैमरा ऑन करोगे सो दैट वी विल से बाय। सत्यजीत लेफ्ट हुआ शायद, श्रीदात्री ओके, नाइस टू सी यू अगेन। ओके, तो होमवर्क करो, 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। फाइन, ओके चलो बाय, गुड नाइट।